आपके लिए टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का फुल ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ जो शायद 2 पार्ट्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हाय। हाय राकेश। हेलो महेश। यार आपने टाटा की नेक्सॉन खरीदी, वो भी ईवी। इंडिया। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसको सेलेक्ट करने का आपका सबसे पहला मोटिव क्या था, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों से इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्स डबल है। Yes. Actually, there are a couple of points in my mind when I starting why I'm looking to purchase a car. So first, my mind was that Tata Nexon first generation EV is giving approximate 300 kilometers, and in actual, if I'm checking on the on-road price, I check with my couple of friends in the Bangalore, Noida, Gurugram. Everyone says that it's give approximate 200 kilometers. So my mind was got changed suddenly. So and recently I got update from the Tata that they are going to launch a new car that is cover approximate 437 kilometers, 38 kilometers. So I think that that car can be my dream car, and that car could be fulfill my dreams. So राकेश, Yes. आपने टाटा नेक्सॉन ईवी चूज करी, yes, उसके बाद में आपने कुछ दिन तक इसको चलाया भी। yes. तो आपको ये गाड़ी और इससे पहले जो भी आप पेट्रोल या डीजल जो भी गाड़ी यूज कर रहे थे, इन दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा? Point number one is that noise free, नॉइस। and point number two is that you cannot get anything that मेरे पास से कोई गाड़ी भी निकल रही है नहीं, आप आराम से बिल्कुल साइलेंटली जाती है। पेट्रोल का कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉइस कम है, उसके अलावा अदर फीचर लाइक इसका एसी बहुत अच्छा काम करता है कंपेयर टू पेट्रोल कूलिंग ठीक है। पेट्रोल कार। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कार स्पीकर इज वेरी नाइस, इट्स हरमन स्पीकर, साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम इज वेरी नाइस। Okay, apart from that, tracking of this car is very nice. जीपीएस ट्रैकिंग, GPS tracking and the braking and the pointer, that is very nice. And the hand rest is one of the best I found in all the cars. It's Tata is one of the best on this car. ओके। बेसिकली 5 चीज़ें जो आपने बताई हैं वो हैं आपकी। सबसे पहला जो आपका था कि भाई कॉस्ट, one more मतलब thing- जो आपका पेट्रोल कॉस्ट है वो बच रहा है। Yes. कूलिंग बहुत अच्छी है, Cooling. म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बाद में अगेन एक रीजन जो आप शायद भूल गए कि सेफ्टी Safety जो one of the best. मेजर कंसर्न है, जो कि आज के दिन रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में है कंफर्ट जोन कि जो आपको उन गाड़ियों में नहीं मिला। उसके बाद में है नॉइस Noise. कि एकदम साइलेंट है, आप मेडिटेशन करते हुए गाड़ी में आराम you चलते can हो। easily, you can easily. ठीक है। अब इसी सेगमेंट में One more feature I missed that is cruise control. Like Cruise control, like ठीक you है। are running on the highway and you want to keep your speed stable. So like suppose I want to keep my speed stable at 80 kilometers. So ठीक I है। will apply the cruise control. I will sit down like a meditation Position. post, and I mean to say that आलती पालती मार के बैठ जाओ हाँ, सीट हाँ। पे, and your car is running at 80 kilometers per hour. Constantly it will run. It will not, if it is going over the flyover, speed automatically down, speed automatically up, but it keeps constant 80 kilometer. ठीक है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी सेगमेंट के अंदर आपको एमजी भी गाड़ी दे रहा था, Yes. उसके बाद में आपको हुंडई भी गाड़ी दे रहा था। तो हुंडई कोना और एमजी की गाड़ी को छोड़ के आप टाटा पे गए थे। Yes. तो ये जो 5 रीजंस थे, क्या ये रीजंस सब उसमें आपको नहीं मिले, या आपने सिलेक्शन ही सिर्फ ये था कि भाई देश में आजकल चल रहा है कि टाटा इंडियन ले रही हैं? Actually, every Indian must have this concept in their mind that we boost our economy, we boost our infrastructure first rather than we boost Chinese or the Japanese. So my first mind was that. Second mind was that the other company cars were little costly rather than Tata. So they are Okay. costing approximately 25 lakh, and this is costing approximately 21 lakh. So that 4 lakhs. You can utilize that 4 lakh in other business and other areas. That is also things of matter. ठीक है। अब चलो ठीक है, आपने इंडियन इकोनॉमी के लिए सोचा, आपने टाटा के बारे में सोचा, उसके बाद में सिलेक्शन करा। लेकिन इसको बेस्ट बोलने के पीछे सिंपल रीज़न यही था कि इंडियन इकोनॉमी, या फिर ये था कि यार उनकी गाड़ियाँ महंगी हैं कुछ। अब मैं अगर उससे एमजी से इसको कंपेयर करूँ या कोना से कंपेयर करूँ तो इसमें कुछ फीचर्स कम हैं उसके कंपेरिजन में। तो क्या वो फीचर्स आपके लिए मैटर नहीं करते थे, या फिर ये मान के चलूँ कि भाई मेरे इसमें जो फीचर्स हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा मेरे को बाहर की कोई चाइनीज़ या
कोई जो वैसी गाड़ियां हैं वो चूज ही नहीं करनी। Point number one is the features. So this car has all the feature which I like. सो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के यूजफुल जो फीचर्स थे वो आपने लिए। I'm got getting all this. अब दूसरी जो चीज़ आती है कि भाई आपकी जो एक लॉन्ग रनिंग मानी जाती है कि मान लो मैं इसको मेरे को जाना है 500 किलोमीटर, अब मेरे पास बाहर आ गया कि यार मैं 350 या 400 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, उस कंडीशन में आप क्या सोचते हो? So in that condition, Tata has suggested me to use their app. So Okay. in that app, you can plan the trip, and everywhere everyone is sharing their plug means charging share. So you can plan that. Like if I'm going to uh, Jodhpur, Kanina to Jodhpur. So I will plan my trip where I can charge. So Tata has announced that, and their every showroom in every city they are giving the charging facility. So you have you have planned that your trip. Like if I'm going via Jaipur, so I will plan to charge my car at Jaipur, and where I can get food as well as. So and I will choose a hotel where I can get charging. So like. And hotel high waking there is charging point, you can utilize that point that time while you are ओके, launching मीन्स dinner. टाटा ने जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना चार्जिंग स्टेशंस का इस्टेब्लिश किया है वो होटल चेन्स के साथ, एजेंसीज के साथ मिलके उनको Not उन्होंने agency, they are stabilized this with the charging station at their showrooms only. And apart from that, they have asked to all the petrol pump owner to stabilize the charging station, and that area almost where these EV cars are there, the petrol pump has stabilized their charging station as well as, and the charging station are very high charging stations, approximately 15 kilowatt, 30 kilowatt, 50 kilowatt, and those charging station charge the car within 30 to 45 minutes full car. ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोस्टिंग मिनिमल हो रही है, मैं सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा उस चीज की जो टाटा ने करा कि आपको ऐप में सारी चीजें दे दी, आपने प्लान करा, आपको पता लग गया कि आपको 200 किलोमीटर के बाद चार्ज करना है क्योंकि उसके 200 किलोमीटर के बाद दूसरा चार्जिंग स्टेशन आएगा। Correct. और उसके बाद में जो थर्ड पार्टी थे यानी कि जिन्होंने चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर रखे थे उन्होंने टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके अपने चार्जिंग स्टेशंस को भी वहां पे ऐड करा दिया ताकि जो कस्टमर है उसको किसी तरीके का कोई एबनॉर्मलिटीज फील ना करनी पड़े अपने पूरी जर्नी के अंदर। Correct. ठीक है। अब उसके बाद में जो बात आती है कि ये है टॉप यानी कि मैक्स जिसको हम बोलते हैं, ये वो मॉडल है। Yes. अगर इससे नीचे वाले मॉडल पे जाते हैं तो उसकी और इसकी प्राइस रेंज में अराउंड 3.5 लाख के आसपास का डिफरेंस है। नहीं, एक्चुअली इससे एक नीचे का मॉडल है XZ, दैट इज नॉट प्लस, XZ plus, this is the XZ plus Lux, and that is the XZ plus only. So that model doesn't have this sunroof, that model doesn't have the cruise control only the, and one more feature was missing in that, that feature didn't came in mind right now. So there are 3 to 4 feature difference in that. So sunroof Okay. is not there. So that is the one of the biggest thing that today youth is looking for the sunroof because they want to go on trip and they want to stand up on the car, want to enjoy their life. So sunroof is the one of the biggest feature on this, cruise control, and one more feature is there. So that feature is not there in that car. So I'm looking this. ठीक है। अब जो सबसे मेजर और सबसे कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है कि कलर, Yeah. इस गाड़ी में कोई और भी कलर अवेलेबल था, सिर्फ यही कलर आपको मिल रहा है? Actually, in this segment, the company is providing 3 colors. One is the white, one is the this intentional, and one is the gray. So why I'm choosing this intentional green is that this is a unique color. No car is providing such color combination. एक्चुअल में टाटा ने जितना भी काम करा, सबसे बड़ी चीज क्या करी कि जितने भी उनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थे उनके ऊपर में ये Green क्रोम को खत्म करके और उन्होंने अलग से एक कलर डाल दिया कि जब भी आपको हरी नंबर प्लेट दिखे या ना दिखे, लेकिन ये जो चीजें हैं जो चारों तरफ है आपको दिखेंगे और उसके बाद में आप जज कर सकते हो कि ये जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक है। मैं इस टाटा नेक्सॉन को ब्लैक में, डार्क ब्लैक में खरीदना चाह रहा था, बट मुझे इस सेगमेंट में डार्क ब्लैक मिल नहीं रहा था, सो आई डिसाइडेड दिस। ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमने बात करी उसके फीचर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब कॉस्ट इफेक्टिव की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि यार ठीक है मेरे को तो पेट्रोल यूज ही नहीं करना पड़ रहा, मेरा पेट्रोल का पूरा खर्चा बच रहा है, बट जब मैं बात करूं कि जहाँ पे आप जाके इसको चार्ज करोगे, किसी होटल पे चार्ज करोगे या टाटा की शोरूम पे चार्ज करोगे, तो वहाँ पे आपको एक बार फुल चार्ज करने में कितना चार्ज करता है अप्रोक्स ये? Suppose if your battery is drained to 0%, okay, so 0 to 100 it will take approximate, there are 2 types of charger, fast charger and slow charger. Slow charger will take approximate 12 to 14 hours, and fast charger will cover in the 1 hour.
ठीक है। In one hour to 1.5 hour, it will full 0 to 100%, and it is not sure you will charge your battery up to 100% every time. So it depend on you that like 80% मेरा काम चल जाएगा, you have charged to your car to 80% only. आई एग्री, बट जो The चार्जिंग, unit is consumed from 0 to 100, it will consume approximately 35 to 40. ओके, Okay, So- so 35, most of the place the unit charge is approximately 15 to 20. So 15 to 20 is very cost effective as per the compared to petrol. आई एग्री, बट टाटा शोरूम जो है वो आपको यूनिट के हिसाब से चार्ज करेगा, Yeah. या everyone is फिर doing- वो ये होता है कि नहीं भाई हमने आपको डिफाइन कर दिया कि आपने इतनी बिजली यूज करी है तो उसका अप्रोक्स इस हिसाब से हम, No, unit के हिसाब से होता है. ठीक है। Actually, when you are charging on the car on the charger at the public place, that charger will give you the unit detail. ओके, और जो अब बात कर रहे हो कि मान लो अभी 8 साल के लिए तो कंपनी बोलती है कि यार बैटरियां चलेंगी, Correct. तो मतलब आपने 8 साल तक का तो फ्री कर लिया, Yeah. अगर उसके बाद में आपको इसकी बैटरी चेंज करानी पड़ती है तो क्या आपने उस कॉस्टिंग के बारे में भी बात करी है? Actually, मैंने I discussed about the battery costing, and in this Tata there is a lithium battery, and this lithium is cell based battery. Okay, in the cell it doesn't mean that your आपके सारे सेल खराब हो जाएंगे. One क्या होगा, most probably 1 or 2 सेल जाएंगे, तो 1 or 2 सेल is costing approximate right now it's 1000, but later the cost can be reduced, so that cost can be reduced and can come up approximate 200 to 300 kilo per cell, so that is also cost efficient for me. ठीक है, और अब जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है हर किसी यूजर का कि कंपनी ने बोल दिया 400 किलोमीटर की एवरेज आपको एक बार की चार्जिंग में ये दे देगी, हाँ. बट बीइंग एज ए कस्टमर आप क्या कहते हो कि एक बार आपने इसको फुल चार्ज करा, उसके बाद में रफ रोड है यानी कि ऑफ रोडिंग आपने करी या एकदम स्मूथ रोड पे आपने उसको चलाया, तो कितना एवरेज ये निकाल पा रही है? क्या कंपनी अपनी एवरेज को जज कर पा रही है? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली इसका 100% से मैं गया था, मैं अपने घर से नोएडा तक मेरे ऑफिस में, तो मैंने इसमें किलोमीटर निकाले थे 290 किलोमीटर. आप आफ्टर दैट इसमें 65 किलोमीटर की बैटरी बची हुई थी. ठीक है, तो वी कैन से दैट दिस कार कैन इजीली रन 350 किलोमीटर इन फुल एसी ठीक इन वन है। ट्रिप. अब 350 किलोमीटर. ठीक है, मतलब मैं एक रफ आइडिया ले सकता हूँ कि 350 टू 360 किलोमीटर वो निकाल लेती है, कंपनी कहती है जी 400 किलोमीटर निकालेगी, मतलब अप्रोक्स 30-40 किलोमीटर का वो ड्राइविंग स्किल्स का, रोड्स का और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनका डिफरेंस आ सकता है. Apart from that, if you will switch off your AC, it will boost your 30 kilometer. You can add 360 plus 30. So approximate 400 kilometer. Apart from that, you will switch off your lights, because I am using the lights in the night. So light is also consuming the battery. इलेक्ट्रिसिटी बैटरी. Okay, and apart from that, you are using music system while you are going. So music system is also consuming battery. So these are some of the factors which are consuming. If you will switch off your music system, switch off your lights, switch off your AC, then it can go beyond 400 ओके, easily. अब सबसे क्रूशियल क्वेश्चन कि 20 लाख देते वक्त क्या आपने नहीं सोचा कि यार 10 लाख रुपए जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 10 लाख में मेरे को नेक्सॉन मिल जाएगी पेट्रोल में, और 10 लाख रुपए का पेट्रोल जो है मैं अगले 10 साल में फूकूंगा. Actually, I was thinking about that also, and I compared XUV300, Nexon, petrol, and this car. So when I'm going to when I'm calculating those things, so XUV300 and Nexon petrol is giving average of. So I decided to go with the Tata, and during my while I made a booking for this. So this car was launched on the 11th of May. So I booked that car on the second day of the launch, and I checked the review from multiple customer. I checked the review from the multiple showroom engineers as well, as they are saying that this car is giving approximate 400 kilometers if you are running this in proper way. Improper way means that you didn't run like that or more than 100 kilometers to 150 kilometers. This car is not like that. So if you are overspeeding any of the car, it will be hazardous for you and for car as well as your life. So you should save yourself as well as save others, guys. So, yes. अभी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, Yes. आप इसकी अगर डैशबोर्ड की फिनिशिंग की बात करोगे तो
पेट्रोल और डीजल इंजन के कंपेयर में अगर बात करें तो क्या इसके डैशबोर्ड में कोई चेंज है या अप्रोक्स वैसा ही कुछ है, बस खाली जो इंटीरियर है मतलब इसका इंटरनल ऑर्गन्स है वो चेंज करे गए हैं, बाकी जो अंदर बैठने का फील है वो वैसा का वैसा है? एक्चुअली अगर जो मैं डैशबोर्ड की बात करूँ ना, तो हर कंपनी का अपना अपना एक यूनिक होता है डैशबोर्ड। ओके, तो टाटा हैज़ यूनिक इन देयर डैशबोर्ड। सो टाटा ने अभी क्या किया था, बाकी कंपनी की कार में देखे ना तो उनके डैशबोर्ड में यहाँ पे आराम से बाहर रखने के लिए चीज़ें होती हैं, बट टाटा ने ऐसा कुछ दिया नहीं। तो डैशबोर्ड में उन्होंने एक इंटरनल दे दिया, सीधा खोल के देखोगे तो इसके अंदर एक स्ट्रा भी वो प्लेट भी दी है, अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हो, यू कैन पार्क दिस एवरीथिंग देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम देयर ये गिव stay there tray, you can put there mobile phone, you can put there purse, you can put there. Okay, and you can put the glass as a glass also, you can put it down and you can use the glass there. Okay, मीन्स यू कैन से दैट कि ये एक आप रिफ्रेशमेंट तौर पे अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। you can use that. ओके Okay, apart from that rest of the things are looks as usual as compare other cars. ठीक है, तो आपका जो इसको स्टार्ट करने का कंफर्ट है लाइक पुश बटन स्टार्ट, सो वो प्लस आप जो चाबी घुमा के स्टार्ट करते थे वो दोनों में कैसा कंफर्ट लगता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है? एक्चुअली चाबी घुमा के जब हम स्टार्ट करते थे तो वैसा लगता था कि यार अभी भी वी आर रनिंग इन 70s 60s। सो वो पुराना पैटर्न हो गया। आज नवे डेज एवरी वेंडर, आई मीन टू से दैट, हर इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि यार पुश बटन दबाओ सबसे बढ़िया है, अपनी चाबी इसके अंदर रखो, चाबी बाहर है तो भी हो जाएगा, एंड लाइक दैट। सो वो एक कंफर्ट जोन देता है आपको पावर वाला। जस्ट पुश द पावर बटन, योर कार इज ऑन, पुश द कार, योर कार इज ऑफ। सो इट गिव्स एडिशनल कंफर्ट टू यू। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है कि भाई डैशबोर्ड बहुत अच्छे से दे दिया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है। अब नए डैशबोर्ड के साथ जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है उसको आप कैसा समझते हो कि यार वो 1 2 3 4 सेट करना ज्यादा अच्छा था, या ये जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये आपको ज्यादा अच्छा लगा? इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊँ कि ऑटोमेटिक मीन्स अगर आपने अभी जैसे आपके सामने मैंने टेम्परेचर सेट किया था, तो अभी इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट लो 18 डिग्री। ओके, सो अभी 18 डिग्री पे पूरी कार को कूलिंग करेगा। एंड नॉट ओनली आपके जो बाकी गाड़ियों में देखोगे आपके आगे आगे एसी मिलता है, इसमें पीछे भी आपके सीट के साइड में भी एसी है, और जो आपकी सीटें हैं ना ये वेंटिलेटेड सीट है। इफ आई विल रिमूव दिस देन इट इज वेंटिलेटेड, सो इट विल गिव यू द एडिशनल कूलिंग टू व्हाइल यू आर सिटिंग। सो आप जब भी दूसरी कार की सीट पर बैठे थे तो आपके पीछे से पसीना आ जाता है, तो इसमें आपको पसीने नहीं आते, आपको एक अलग से कंफर्ट मिलता है। और जैसे आपने लॉन्ग रन ड्राइव किया तो बाकी कार्स को ड्राइव करने के बाद क्या होता है कि आपको अप्रोक्सीमेट अपने 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको बड़ा करेंसी महसूस होती है, बट इसमें ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होता। आप यू कैन इजीली फील रिफ्रेश आफ्टर रनिंग 200 किलोमीटर्स। मतलब एक जो कंसर्न मैंने हमेशा देखा है लोगों के साथ कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले जब तक तो ठीक है, हाँ, जब 50 किलोमीटर चले तो उसके बाद में आगे से तो एकदम ठंडे हैं और पीछे से वो पूरा शर्ट भी भीगी हुई है, पैंट भी भीगी हुई है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो ये कूलिंग शीट्स हैं ये आपको वो कंफर्ट दे देती हैं कि आप आगे और पीछे से दोनों बराबर रहो। करेक्ट। ठीक है, एक रिफ्रेश फील करता है, फ्रेश फील करता है आदमी जब गाड़ी से उतरता है ना, फ्रेश फील करता है, हाँ नाउ आई एम गुड। ठीक है, अब उसके बाद में जब बात आती है कि जब आप इसको ड्राइव करते हो एक बार लाइक सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो या नॉर्मल रोड के अंदर ड्राइव कर रहे हो, तो कंफर्ट कैसा रहता है? मतलब क्लिच गायब हो गई है बेसिकली, फर्स्ट पॉइंट। बचपन से आप क्लिच के साथ चला रहे थे, आज एकदम से क्लिच गायब हो गई है, तो वो कंफर्ट कैसा है? एक्चुअली जब आप फर्स्ट टाइम आप रन करते हैं ना तो थोड़ा सा आपको awkward लगता है कि यार कैसे करूं। और एक हम लोगों की एक हैबिट होती थी गियर वाला सिस्टम, क्लिच दबाया गियर किया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था। तो जब मैं तो टेस्ट ड्राइव तो उसने मुझे बताया कि सर आप इसको ऐसे मत करो, आप अपना जो लेफ्ट पैर है क्लीच वाला, इस देयर इज स्पेस इन द कार, आई विल शो यू लेटर, तो वहाँ पे अपना पैर रखो सो दैट यू विल फॉरगेट अबाउट द क्लीच, आपको दबानी भी नहीं दबानी। तो मैंने वहाँ पे पैर रखा, उसके बाद मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी में क्लिच नहीं है, मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। ब्रेक के लिए इसने एक ये पाइवट मॉडल दिया हुआ है। फ्रॉम देयर यू कैन जज, देयर आर द 4 पॉइंटर्स। पार्किंग, while you are park your car, this is parking mode. Then there is the reverse, so while you are putting it in reverse you have to keep your foot on the brake, so it will give the parking reverse. So while
you will putting your pivot on the reverse, it will give you the camera on the screen, that back camera, where you can easily park. Then there is a neutral option. Okay, if you don't want to park it, you can put it on neutral and you can use a hand brake. So अदर्स कार में कहता है कि सेपरेट एक हैंड ब्रेक होता था, बट इसमें सेपरेट हैंड ब्रेक नहीं, सेपरेट बटन दिया हुआ हैंड ब्रेक के लिए. ओके, दिस इज द हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दिया होल्ड ब्रेक है. हाँ, यस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑटो होल्ड एज वेल एज, सो यू कैन पुट एज ऑटो होल्ड. सो ऑटोमेटिक गाड़ी आपको जैसे न्यूट्रल किया ऑटोमेटिक होल्ड पे चली गई. होल्ड पे मीन्स पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली लग गया इसमें. ठीक है. Okay, apart from that, it has 3 modes. One is the sports mode, eco mode and city mode. Okay, city mode में हम जनरली हम जब आप सिटी के में ड्राइव करते हैं तो हम सिटी मोड रखते हैं, क्योंकि गाड़ी बार बार ब्रेक लगते हैं, चलती है, धीरे चलती है, तेज़ चलती है, ऐसे होता है. और इको मोड मीन्स ये इकोनॉमी मोड है, ये आपका सबसे ज़्यादा स्पीड होता है. और टाटा हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को इको मोड में ड्राइव करो. मतलब मैक्सिमम माइलेज आप इको मोड में ले सकते हो. यस. बाकी फिर चीज़ें उसी हिसाब से वेरी कर जाती हैं. स्पोर्ट्स मोड में आपका माइलेज ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है. अच्छा हो जाता है. मतलब ऑफ रोड गाड़ी ड्राइविंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो. गाड़ी एकदम से ऐसे भागती है जैसे प्लेन दौड़ रहा हो स्पोर्ट्स मोड में. सो अब एक चीज़ की मैकेनिकल से सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल पे चली गई. करेक्ट. अब जो नॉर्मल गाड़ियों में दिक्कत आती है इलेक्ट्रिकल होने के बाद में कि आपकी गाड़ी बंद हुई, आपके ब्रेक लगने बंद, तो क्या वो इशू इसमें भी है या ये गाड़ी बंद होती ही नहीं? क्योंकि नहीं, जनरली गाड़ी बंद होती नहीं, और बंद होगी तो आपका पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है इसमें. ठीक है, मतलब आपके पास एक सेफ्टी फीचर उन्होंने ऐड कर दिया इस चीज़ के लिए. ओके. और जब भी हम ड्राइव करते हैं तो इसमें इट हैज गिव 3 मोर वन मोर फीचर, दैट इज रीजनरेट. सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ रीजनरेट. सो व्हेन जैसे आप स्पीड सपोज योर गाड़ी इज रनिंग अप्रोक्सीमेट 80 km/h एंड यू हैव पुट इट रीजनरेट एज राइट नाउ इट इज level 3. So level 3 means like your car will be stop in 100 meter only. 80 पे चल रही है तो 100 मीटर पे ये गाड़ी आराम से आपकी कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी बिल्कुल स्पीड. ठीक है. अब और रीजनरेट, एक तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, उसके अलावा रीजनरेट आपकी बैटरी को चार्ज करता है. ठीक है. दैट फीचर इज एडिशनल फीचर. मुझे ये फीचर कहीं भी किसी भी गाड़ी में नहीं मिला, रीजनरेशन. ये रीजनरेट का ना जो वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसका एक छोटा सा जो कंसर्न मेरे को लगता है कि आप कह रहे हो कि भाई जहाँ पे आप जाम में फंसो वहाँ पे ये काम करेगा, ये हर जगह काम, आप नॉर्मल रोड पे चलते हो हर जगह काम करेगा. जैसे आपने सपोज आपने आपकी रेस से पैर उठाया, साइमल्टेनियसली रीजनरेट स्टार्ट वर्किंग, तो जैसे आपने रेस से पैर उठाया तो आपकी गाड़ी स्पीड धीरे हो जाएगी. ठीक है. और ये बिल्कुल धीरे बिल्कुल धीरे कर देगा. आपकी बाकी पेट्रोल गाड़ी में आपने रेस से पैर उठा ली तो आपकी एकदम से रेस धीरे आएगी, तो वो आपको 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में गाड़ी धीरे तक आएगी. बट इसमें क्या था, 100 मीटर के अंदर गाड़ी को स्पीड धीरे कर देता है और गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता है. ठीक है. और उसका क्या नुकसान है अगर मैं इसको लेवल 3 पे ही रखूं, लेवल 1 पे ना करूं तो? लेवल 3 मतलब आपकी गाड़ी का रिजनरेशन ज़्यादा रहेगा, आपकी बैटरी बार बार चार्ज होती है. कोई ड्रॉबैक भी है? नहीं, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है. इसका सिर्फ ये है कि आपकी गाड़ी और स्पीड नहीं चलेगी. तो अब जब भी आप रेस छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी और यू कैन इजीली कंट्रोल दिस. ठीक है. मतलब अगर आपको गाड़ी को लंबे समय तक भगाना है तो आप इसको लेवल 1 पे रखोगे. हाँ. या ऑफ भी हो सकता है? नहीं, ऑफ नहीं होता. ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है. लेवल 1 पे आप रखोगे तो आप सबसे कम जितना भी भगाओ वो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा. उसके बाद जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से रीजनरेट. मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि चाहे आप हाईवे पे चलो या फिर आप नॉर्मल रोड्स पे चलो, मैं तो कहता हूँ कि रीजनरेट पावर 3 करके चलो. क्योंकि हाईवे पे क्या होता है कि ड्रास्टिकली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया तो आप भी ब्रेक लगाते हो, तो जैसे ब्रेक लगाते हो अगेन इट्स रीजनरेट द पावर फॉर बैटरी, बैटरी चार्ज करने के लिए, तो बैटरी चार्ज होती है. और रीजनरेट 3 जैसे आपने देखा कि आप आगे कोई ट्रक जा रहा है, धीरे हो रहा है, आपने रेस से पैर हटाया तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी ट्रक की स्पीड के अकॉर्डिंग. मतलब आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. सबसे बड़ी बात ये. ठीक है. अब 2 बेसिक से क्वेश्चंस हैं. सबसे पहली चीज आपने बताया था कि भाई मेरा फीलिंग कंफर्ट अच्छा है, तो मेरे पास आर्म रेस्ट दिया हुआ है. हैंड रेस्ट इजीली यू कैन पुट योर हैंड देयर. Okay, you will feel comfort. And one more thing, below that handrest it is giving you pockets. So in that you can put your documents, you can put your cards, you can put your purse, you can put your money. Apart from that, it gives us one more space, that is the charging. This is the charging station for the mobile phone. This is the wireless charging. This is the wireless charging station. So if your phone is supporting wireless, then it will easily charge your phone. ठीक है. Okay, this is the space for the you can put it a pen and other these thing like. Okay, so अगर इसकी टेस्टिंग करें तो अभी ये ऑन नहीं है क्या?
नहीं होना ये भी। तो वेयर हम इसको किस तरीके से प्लेस करें कि ये काम करेगा? नाउ इट इज़ वर्किंग, लुक एट दिस। ओके, सो मतलब उन्होंने वायरलेस चार्जर आपको दे दिया है कि Yes. आपको बार बार वो प्लग इन प्लग आउट Plug in, नहीं plug in करना पड़ेगा। और अगर आपको प्लग इन प्लग आउट करना है तो दे हैव गिवन अ सेपरेट स्पेस देयर इन द यूएसबी। हम्म, यस, ठीक नाउ इट है। इज चार्जिंग। तो यहाँ पे उन्होंने आपको वायर्ड चार्जर के लिए भी स्पेस दिया है। यू कैन यूज योर ओरिजिनल केबल्स एंड यूज दिस। ओके, This सो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि जो हिल कंट्रोल बोलते हैं हाँ। इसमें, हिल कंट्रोल का बेसिक यूज क्या है? हिल कंट्रोल मीन्स आप यू आर पहाड़ी एरिया से उतर रहे हो, ठीक है, एंड यू कैन नॉट यूज योर रेस एट दैट टाइम, सो यू जस्ट प्रेस द हिल कंट्रोल एंड इट विल ऑटोमेटिकली कंट्रोल योर स्पीड एज speed. पर द हिल, एज पर जैसे आपका जैसे Slope inclination- के basis जैसे पे। आपका इंक्लिनेशन उसके अकॉर्डिंग ये कर देगा। सपोज आपको पहाड़ी पे चढ़ना है हम्म। तो यू कैन यूज दिस हिल एंड यू कैन जस्ट रिमूव द फुट फ्रॉम द रेस एंड इट विल ऑटोमेटिकली रन देयर। हिल कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको रेस का यूज़ नहीं करना, यू हैव टू यूज योर ब्रेक्स ओनली। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसके म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कि जो म्यूजिक सिस्टम है उसका कंफर्ट, मतलब आपने बताया कि हरमन का है, मानता हूँ यार हरमन का है तो काफ़ी अच्छा आपका उसका सपोर्ट रहा होगा, बट अगर बात करें उसके कंफर्ट की कि एक तो होता है कि यार बेस इतना है कि कानों को फोड़ता जा रहा है, या फिर ये है कि स्मूथ है सारा। It is the one of the best. Harman is the one of the best because as I remember 4 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने ली थी तो that time he explained me that Harman is the one of the best. So I was thinking that and after that I listen music from a lot of other Nexon cars. So let me run this for you. You will also feel the very comfort in the Harman. So let me run this for you. यारा ने पिलाई सानू चंगी आदत पाई, यारा ने पिलाई सानू चंगी आदत you will feel like a DJ, मैं DJ सोची car. मेरे यार शराबी मेरी शाम आई, लवली पैग बना के यारा अपने होगी लाई, मैं सोची मेरे यार शराबी मेरी